اوکے سر. ناظرین آداب. دہشت گردی کی وجہ سے متاثرہ پاکستانی عوام کے روزمرہ کے احوال لے کر ہم حاضر خدمت ہیں طرز حیات کے ایک اور شمارے کے ساتھ. آج کے شمارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جماعت الدعویٰ کے 3 رہنماؤں کی، جنہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں 2 مزید مقدمات میں سزائیں سنا دی ہیں. عدالت نے کل عدم تنظیم کے جن رہنماؤں کو سزا سنائی ہے ان میں ظفر اقبال اور محمد اشرف کو 16 سال کی قید، جبکہ حافظ عبد الرحمان مکی کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ جماعت الدعویٰ کے رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مزید کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو آئیے آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ. دہشت گردی کی دنیا کا وہ نام جو پاکستان میں رہ کر بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان اور دوسرے کئی ملکوں کو بھی اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتا رہا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں جماعت الدعویٰ کے 3 رہنماؤں کو 2 مزید مقدمات میں سزائیں سنا دی ہیں. عدالت نے کل عدم تنظیم کے جن رہنماؤں کو سزا سنائی ہے ان میں ظفر اقبال اور محمد اشرف کو 16 سال قید، جبکہ حافظ عبد الرحمان مکی کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی. بہت سی ٹیرر فائنینسنگ اور آرگنائزیشنز اور سارا جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوششیں جاری تھیں. تو حکومت پاکستان کچھ عرصے سے اس طرف سوچ رہی تھی اور ہم نے اس پہ کئی نشستیں بھی کی، میٹنگز بھی کی اور پروونشل گورنمنٹ سے مشاورت بھی کی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے. اس وقت ہماری کوئی ایسی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ یا کوئی کرتا ہے تو وہ ہم اس کو اپنا دوست تصور نہیں کرتے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 3 کے جج اعزاز احمد بٹر کے سامنے محکمہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے درج مقدمہ نمبر 19/89 اور 19/90 کی سماعت ہوئی، جس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے اور جرح مکمل ہونے کے بعد مقدمات کا فیصلہ سنایا گیا. اس کے علاوہ جماعت الدعویٰ کے رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مزید کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جن میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید سمیت حافظ عبدالسلام بن محمد، حافظ عبد الرحمان مکی، ظفر اقبال، یحییٰ مجاہد، لقمان شاہ اور حافظ مسعود الرحمان کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں. کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ان تمام ملزمان پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کا الزام ہے. ادارے آپ کی جو عدالتیں ہیں اس کو چھوڑ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہم نے قدم اٹھایا ہے، ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ہم ہی کہہ چکے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کو بری کر چکی ہیں. 13 اگست 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور زمینوں کے کیس میں جماعت الدعویٰ کے 2 رہنماؤں کی سزائیں معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے تھے. عدالت عالیہ جسٹس اسد جاوید گورال اور جسٹس وحید خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے
जमात उद-दावा के रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुल सलाम की सजाओं के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की थी। इससे कब्ल हाफिज अब्दुल रहमान मक्की समेत जमात उद-दावा के 3 दिगर रहनुमाओं पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 18 जून को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किया था। 1997 के इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में महकमा-ए इंसदादे दहशतगर्दी की जानिब से साल 2019 के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोधा के थानों में जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद और दीगर कई रहनुमाओं के खिलाफ 23 FIR दर्ज कराई गई थी। CTD की जानिब से उन पर मदारिस और मसाजिद की जमीनों को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था। इससे कब्ल हाफिज सईद पर दीगर मुल्जिमान के साथ कम से कम 5 बिगर केसेस में फर्द जुर्म आयद किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने ये जानना चाहिए कि एक किसी आतंकवादी को हमने ब्लैकलिस्ट किया है तो उसके खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करना चाहिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। गुज़िश्ता साल 17 जुलाई को हाफिज सईद को CTD पंजाब ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्जाम में गुजरांवाला से गिरफ्तार किया था और जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी नवंबर 2008 में मुंबई में होने वाले हमलों के बाद जमात उद-दावा पर पाबंदी आयद की थी और इसे एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इससे पहले 2006 में भी नजरबंद किया गया था। 2014 में अमेरिका ने भी जमात उद-दावा को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करते हुए उस पर मालियाती पाबंदियां आयद की थीं। 31 जनवरी 2017 में भी लाहौर के जौहर टाउन में वाक़े उसके घर पर ही 10 माह के लिए नजरबंद किया गया था। पाकिस्तान में फैली बदउनवानी, महंगाई, बेरोजगारी, मगरिब परस्त और अवाम के मसाइल से हुक्मरानों की बेपरवाही के खिलाफ कूसने वाला ये दहशतगर्द पाकिस्तानी मुआशरे को अपनी तकरीरों से जुनूनी और इंतहा पसंद बनाने की मुहिम में जुटा रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की सड़कों पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की बात करने वाला ये खतरनाक दहशतगर्द क्या करता है। हालांकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जिहाद की वकालत करने वाला और मुंबई हमलों से लेकर भारत को 20 मर्तबा खून के आंसू रुलाने वाला ये बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों के लिए फंड इकट्ठा करता रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना वारदातों को मंजर आम पर लाना खतरों से खेलने के मुतरादिफ है और सहाफ़ी बिरादरी इसकी कीमत हमेशा चुकाती रही है। सहाफ़ियों को पाकिस्तान में बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है, उनकी टारगेट किलिंग्स की जाती रही हैं, उनको अगवा करके उनकी मस्क शुदा लाशें वीरानों में फेंकी जाती रही हैं, उनको मौत की धमकियां दी जाती रही हैं। इतना ही नहीं, उनके दफातर पर भी खुलेआम हमले किए जाते रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली तंजीम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की मीडिया सेफ्टी एंड प्रेस फ्रीडम इन पाकिस्तान 2019-2020 के उन्वान से शाया की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना की वबा के दौरान मीडिया अराकीन को मालूमात तक रिसाई और उसे अवाम तक पहुंचाने में रुकावटें हायल करने में इजाफा देखा गया है। पूरी तफसील के साथ पेश है ये रिपोर्ट। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली तंजीम पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की जानिब से मीडिया सेफ्टी एंड प्रेस फ्रीडम इन पाकिस्तान 2019-2020 के उन्वान से गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना की वबा के दौरान
मीडिया अराकीन को मालूमात तक रसाई और उसे अवाम तक पहुंचाने में रुकावटें हायल करने में इजाफा देखा गया। 40 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट को 2 हिस्सों में शाया किया गया है। रिपोर्ट का पहला और अहम हिस्सा कोरोना की वबा के दौरान मीडिया वर्कर्स की हिफाजत के हवाले से है और इसी हिस्से में बताया गया है कि किस तरह हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात को फराहम करने में परेशानी का शिकार दिखाई दी। पाकिस्तान के हवाले से इस रिपोर्ट में तफसील से बात की गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मीडिया की आज़ादी है उसके खतरात में इजाफा हुआ है। सहाफ़ियों के लिए जो साजगार माहौल है वो मजीद खराब हुआ है। मीडिया के इदारों के हवाले से भी तफसील से बात की गई है कि किस तरीके से मीडिया के इदारों की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फर्क पड़ा है। टीवी चैनल्स के सिग्नल्स को बंद किया गया है या उनके नंबर्स को आगे पीछे किया गया है। तो पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी जो रवैये हैं उनके हवाले से तफसील से बात की गई है। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सहाफियों के कत्ल, उन पर तशद्दुद किए जाने, उनकी गिरफ्तारियों और सहाफती इदारों पर रियासती और हुकूमती बढ़ते दबाव पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में बताया गया है कि मई 2019 से अब तक पाकिस्तान में कम से कम 3 सहाफियों को उनके सहाफती काम की वजह से कत्ल किया गया है, जबकि 16 सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान भर में इसी अरसे के दौरान सहाफियों को धमकियां देने और उन्हें हरासा किए जाने के 17 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कई सहाफियों को अगवा किए जाने, कई के घरों पर छापामारी किए जाने और कई सहाफी के लापता होने का मामला भी रिपोर्ट हुआ है। ये शर्म का मुकाम है हमारे हुक्मरानों के लिए, शर्म का मुकाम है। मीडिया पर पाबंदी, आज हमें पता चल गया है कि मैंने आज़ादी दी, मीडिया को मैंने आज़ादी दी, आज उनकी बर्दाश्त का पता चल गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां जो मीडिया पे उन्होंने लगाई वो उनके नजदीक काफी नहीं थी। सहाफियों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी गुज़िश्ता दिनों अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 2017-18 ने पाकिस्तानी आवाम को गम अलम के सिवा कुछ नहीं दिया। 2017 में कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया गया जिनमें आम शहरियों, खवातीन और अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अलावा न्यूज़ चैनलों, सहाफ़ियों, हुकूमती अहलकारों और पुलिस के आला अफसरान को खुले आम निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए तकरीबन 9 सहाफ़ी हलाक किए गए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद को जख्मी भी किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हमेशा से ही काफ़ी बुरा सलूक किया जाता रहा है। यही वो वाहिद मुल्क है जहां सहाफ़ी अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए खुद अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। इस सारे वजूहात की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 17 सालों में जो 100 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं, उनमें सिर्फ 3 सहाफ़ियों के हवाले से तहकीकात आगे चली है, मुल्ज़िमान का पता चला है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको सज़ा अदालत की तरफ से हुई है, लेकिन उस सज़ा पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। यूँ तो हर सहाफ़ी की ज़िंदगी में रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन पर यकीन करना वाकई मुश्किल होता है, और ये भी सही है कि हर सहाफ़ी की ज़िंदगी कदम कदम पर ख़तरों से भरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में बदस्तूर लगे रहते हैं और लोगों को पल पल की खबर से आगाह कराते रहते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान की कीमत से चुकाना पड़ता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2016 में 11 जर्नलिस्ट की टारगेट किलिंग की गई थी, जबकि 2013 और 2014 में भी 11 सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए हलाक कर दिए गए। सन 1992 के बाद से 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए कत्ल किया जा चुका है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस वक्त सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क बन चुका है। ये सिर्फ मैं नहीं समझता हूँ कि सहाफ़ियों की जो हिफाजत है या उनकी सिक्योरिटी का वो है, वो सिर्फ हुकूमत का मसला है। ये से फरीकी मसला है, यानी हुकूमत का भी एक किरदार है, मीडिया के इदारों का एक किरदार है और ख़ुद सहाफ़ियों का इसमें किरदार है। जब तक ये तीनों फरीक एक साथ काम नहीं करेंगे और वो तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं करेंगे तो ये जो मुश्किल है, ये मुश्किल है कि ख़त्म करे हमें। सो लिहाजा मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान में अभी तक कानून साजी नहीं कर सकी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क इराक है, जहां गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान 150 से ज़ायद सहाफियों को हलाक किया जा चुका है। इराक में हर साल तकरीबन 15 से ज़ायद सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए लुक़्मा अजल बन जाते हैं। शाम यानी सीरिया सहाफियों के लिए दूसरा सबसे खतरनाक मुल्क है, जहां मुख्तलिफ गिरोह सहाफियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब हर साल तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद सहाफी कत्ल कर दिए जाते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सियासी लीडरान और हिफाजती एहलकारों में क़ुव्वत इरादी की कमी की वजह से दहशतगर्दी की आग में झुलसते पाकिस्तान के सामने कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी बुनियाद कहीं न कहीं दहशतगर्दी की ज़रख़े ज़मीन से ही जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक मसला है पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करते मंशियात का। गुज़श्ता दिनों सूबा पंजाब के ज़िला चिन्योट से पुलिस ने 40 साला मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से भारी मिकदार में नशावर चीजें बरामद की। वहीं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी इन दिनों आइस नशे का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। आइस नशे की लत का शिकार ज्यादातर नौजवान नस्ल है, जिनमें मुख्तलिफ जामियात के तलबा की बड़ी तादाद शामिल है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ मुजरिमों की इस्लाह करने में नाकाम हो चुका है। इस बात का अंदाजा एक मंशियात फरोश आदि मुजरिम के 23 बरसों में 20वीं मर्तबा गिरफ्तार होने से लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों सूबा पंजाब के जिला चिन्योट से पुलिस ने 40 साला मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से भारी मिकदार में नशा आवर चीजें बरामद की। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली ने 1990 की दहाई में मंशियात फरोशी की शुरुआत की थी और उसे पहली मर्तबा सिर्फ 17 साल की उम्र में 29 अप्रैल 1997 को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक उसे 23 मर्तबा गिरफ्तार किया गया है और हर बार वो रिहा होता रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी इरफान नोकोकारा का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं है जिसके जरिए ऐसे लोगों को कानून की पासदारी करने वाला शहरी बनाया जा सके। खुसूसन पंजाब के बड़े जो शहर हैं उनमें तालीमी इदारों में मनशियात के रुझान बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उस रुझान के बढ़ने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा हम जिस बात का जिक्र करते हैं वो दोस्तों की बुरी सोबत है। मसलन एक दोस्त अगर नशा करता है तो वो अपने नशे को पूरा करने के लिए या नशे का प्लेयर लेने के लिए ऐसे दोस्तों को साथ में लाता है जो पहले नशा नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर बात एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास जो उसकी मनी पॉकेट मनी जो ख़त्म हो जाती है और वो ऐसे दोस्तों को तलाश कर। एक तो ये वजह है। दूसरी फैमिली ब्रेकडाउन, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो टूट चुका है, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से लोग हमारे नौजवान नशा बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और उस नौजवानों में ख़ासकर मेल के साथ साथ फीमेल में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सूबाए खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी इन दिनों आइस नशे का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। आइस नशा पेशावर में 1500 से 3000 रुपए में दस्तयाब है, जबकि उसके आदी अफराद का ताल्लुक ज्यादातर कारखानों मार्केट, यूनिवर्सिटी रोड,
हयात आबाद और पिंडों से बताया जा रहा है। आइस नशा नौजवानों को दीमक की तरह चाट रहा है, मगर माना ये जा रहा है कि बदहाली से दो चार जिंदगी ख्वाबों में ही सही चंद लम्हों का सुकून पाने के लिए नशे का सहारा ले रही है। कुछ अशिया होते हैं नशे के जिससे CNS या इंसान का जिस्म वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मसलन काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, वो सोया रहता है। कारखानों मार्केट में आइस नशे का मवाद बआसानी दस्तयाब है, जिससे शहर के दीगर इलाकों को भी ये नशा सप्लाई किया जाता है। जराए के मुताबिक आइस नशे की लत का शिकार ज्यादातर नौजवान नस्ल हैं, जिनमें मुख्तलिफ जमात के तलबा की बड़ी तादाद भी शामिल है। और पेशावर में तबका अशराफिया की कुछ खवातीन भी इस नशे की आदी हैं। आइस नशा क्रिस्टल की शक्ल में होता है, जिसके आदी अफराद इसे पिघलाकर बोतल में डालते हैं, जिसके नीचे आग जलाई जाती है और उसमें स्ट्रॉ लगाकर उसमें से निकलने वाला धुआं खींचा जाता है। इस नशे के आदी अफराद के मुताबिक हेरोइन और दीगर नशे के मुकाबले में इसमें ज्यादा मजा होता है। ये इंसान को मुतहर्रिक कर देता है और उसकी नींद उड़ा देता है। डॉक्टरों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा नशा आइस का ही है। हार्ड और सॉफ्ट ड्रग में वाज़ेह और नुमाया फ़र्क है। हार्ड ड्रग ऐसी ड्रग कहते हैं जो आपकी लाइफ को डिक्रीज़ करती है, यानी आज आपने नशा शुरू किया है, विद इन 2 या 3 ईयर्स के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहते। सॉफ्ट ड्रग वो ड्रग्स हैं जो आज आपने शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जो कुछ ज़्यादा अरसे के लिए अल्लाह ताला आपको मौका मुहैया करता है। हार्ड ड्रग्स में जो आइस है, जिसे हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, कोकीन, हैश, हेरोइन, और सॉफ्ट ड्रग्स में आप चरस है, शराब है, LSD टैबलेट है और दीगर जो ड्रग उसका इस्तेमाल हम सॉफ्ट ड्रग जुमरे में लेके आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन के ज्यादातर नशेड़ी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, वहाँ नशे का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल रहा है। दरअसल इसके पीछे हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाही और हिफाजत के तई मुसलसल की जा रही अनदेखी है। यही वजह है कि आज ये शहर हेरोइन की स्मगलिंग का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। नतीजे के तौर पर यहाँ हेरोइन हासिल करना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने से कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख लोग हेरोइन के नशे के आदी हैं। तालिबान समेत तमाम दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की नापाक हरकत ने आज पूरे पाकिस्तान को झंझोर कर रख दिया है। इंतहा पसंदों के नापाक अज़ाइम हर रोज खौफ व दहशत की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। फिरका परस्ती, लूट मार, टारगेट किलिंग या फिर दूसरे तरीकों से हैवानियत का नंगा नाच ऐसे नासूर है जिन्होंने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया है। संगीन तरीन हालात की तस्वीर कुछ ऐसी है कि कारोबारी बिरादरी दहशतगर्दी की आग में झुलस रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत लगातार बदतरीन सूरत हाल से गुजर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। फिरका वारियत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के दलदल में फंसे पाकिस्तान को आज कई तरह के मसाइल का सामना है। तालिबान और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का खौफ आज पाकिस्तान की आम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहा है। वॉर ऑन टेरर के नाम पर लड़ी जा रही लड़ाई में पाकिस्तान के दोहरे रवैये ने संगीन हालात पैदा कर दिए हैं, जिसकी मिसाल ये है कि आलमी बिरादरी की तमाम कोशिशों के बावजूद दहशतगर्द तंजीमों के हौसले बुलंद हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत भी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। पिछले माली साल जो यहाँ की प्रोडक्शन थी उसमें 24% तक का इजाफा था लोकल इंडस्ट्री हमारी, और इस दौरान जुलाई से मार्च तक इस साल के दौरान ये इजाफा 24 से गिर के 6% रह गया।
पाकिस्तानी मईशत की बदतरीन सूरत हाल का जिक्र हाल ही में मंजर-ए-आम पर आई कई रिपोर्ट्स में भी किया गया है। इन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया है कि दहशतगर्दी के जाल में फंसे पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से उलझ कर रह गई है, जो एक मुसल्लमा हकीकत है। बात कराची की करें तो कभी इस शहर को ताजिरों के सपनों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज ये शहर सिर्फ सपने बिखेर रहा है। कुछ यही हाल लगभग पूरे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का है, जहां तशद्दुद की आग में न जाने कितने ही कारोबारियों और सरमायाकारों के अरमान झुलस कर रह गए हैं। आज पाकिस्तान में चलता है तो सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों का ही कारोबार। ये दहशतगर्द तंजीमें फंड इकट्ठा करने के लिए जबरन वसूली, अगवा बराए तावान और नशे का सौदा जैसे हथकंडे अपनाए हुए हैं, और इसका सबसे आसान निशाना पाकिस्तान के कारोबारी ही बनते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान के जीडीपी पर खासा मनफी असर पड़ा है और इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की जीडीपी महज $200 बिलियन के आसपास है। वहीं एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भी पाकिस्तान में आज तकरीबन 158 रुपए के करीब है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले के बाद से जारी वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने अब तक तकरीबन $3.5 बिलियन खर्च किए हैं, जिसका नतीजा सिफर रहा है। बम धमाकों और खुदकुश हमलों की चोट सहती पाकिस्तान की मईशत पर महंगाई की मार भी पड़ रही है, जिसकी शरह आज 21% तक पहुंच चुकी है। साथ ही दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी असर पड़ा है और गुज़िश्ता बरस इसमें 53% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा सयाहत और सैरो तफरी जैसे शोबों को भी दिन ब दिन फलती फूलती दहशतगर्दी ने जख्मी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाज़े रहे कि तालिबान और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के बेलगाम हौसले और इस जानिब पाकिस्तानी हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया आलमी बिरादरी के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। बद से बदतरीन जिंदगी जीने को मजबूर पाकिस्तानी अवाम से आज हर कोई बाखबर है। लाकानूनियत और सलामती के तईं पशो-पेश की सूरत हाल में कोई भी कंपनी पाकिस्तान में अपना दांव लगाना ही नहीं चाहती। ऐसे में दहशत के मझधार में डगमगाती पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल एक ऐसे दौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है जहां से किसी भी कारोबार का रास्ता सिर्फ जिंदगी को दांव पर लगाकर ही तय किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्नस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मं 29 नवंबर सुबह 1 बजे पन ख्याल अमे पत मन की बात प्रोग्राम तर्जमा इलाकई जबानन मं आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर करना। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबानन मं तर्जमगी दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर करना। याद थयु आतवार 29 नवंबर सुबह 1 बजे मन की बात।